So are you guys able to see the whiteboard? It's loading. Okay, yeah, Yeah, I now, can. okay, perfect. Right, so the next topic is radical equations. Okay, let's directly talk about our first example where we have an equation 5 under root c plus 15 equals 35. Now this is a radical equation because of this under root c, right? This is why it is called the radical equation, and here again you have to solve this. So whenever you have to solve an equation, you need to basically find the unknown variable. In our case, we will be finding c. तो कोई भी इक्वेशन हो, वो रेडिकल इक्वेशन हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, our steps are similar. हमने अंडर रूट सी को बेसिकली सेपरेट करना है, ठीक है? अल्टीमेटली सी को अलग करना है, बट इनिशियली हम अंडर रूट सी को अलग करते हैं. 35 minus 15 under root c is 20 divided by 5. So we'll be left with under root c equals 4. Now obviously we need to solve to find c. जब c find करना है, इस under root को हमने cancel करना होगा. So we will take a square on both sides and we have c equals 16. You guys must be familiar with this concept already. ऐसा है? Is it like that? Yes, ma'am. Right, Ishan? Hello. Yeah, I can hear you now. Yes, ma'am. Okay, perfect. Let's talk about the second example and the last example. So the second example is 6 under root d minus 10 equals 32. In order to solve this equation, we'll basically find the value of d. So we have 6 under root d equals 32 plus 10. So under root d equals 42 by 6. D would be, under root d would be 7 and d would be 7 square, that is 49. So all you need to know is that whenever you have been asked to solve an equation, solve means to find the unknown variable, the value of unknown variable, right? The steps would be similar even if it's a quadratic equation, a radical equation, you need to separate this under root d. In case of quadratic equations, we start taking the factors and then we equate this equal to 0 and this equal to 0. But in case of any equation, in general, our rules are same. We need to separate the variable on the left hand side and we need to take all the numbers to the right hand side. So if something is being subtracted, it would be added to the other in the other side, right? I hope it's clear. Yes, ma'am. Okay, very good. So our next topic is sequences involving exponential growth. So what is a sequence? Any idea about what a sequence is? No idea? Okay. Basically, if I talk about a sequence, in simple words, it is a pattern of numbers. Okay? 1, 2, 3, 4, and so on. This is a sequence. We have a pattern
where every next number is basically the previous number plus 1. So we have 1 plus 1. Here we have 2 plus 1. Here we have 3 plus 1. Do you understand the basic idea of what a sequence is? Yes, ma'am. Very good. Okay. Let's say I have 2, 4, 6, 8, 10, and so on. So here we are basically adding 2. Okay. But these sequences are not the exponential growth sequences. Here we have to talk about the exponential growth sequences. And the word exponential comes from the term exponent. What is exponent? Exponent is basically the power. Okay. So the first example in our case would be 2, 4. Zahib, are you with us? Yes, ma'am. Okay. So here we are directly going to talk about a sequence that involves exponential growth. Okay, I'll tell you what it means. 8, 16, 32, and so on, right? So here we have a sequence which is growing exponentially. And when we are saying that the sequence is growing exponentially, it means here we have 2 to the 1, then we have 2 square, then we have 2 cube, 2 to the 4, and 2 to the 5. So this 5, this 4, this 3, this 2, and this 1, these are basically the exponents. Right, okay. So this is a sequence. It is going exponentially. इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो 2 to the 1 करके आई है, इसकी जो सेकंड टर्म है वो 2 स्क्वायर करके आई है. Every time I am adding 1 to the exponent to get my term. ठीक है, 2 to the 1 is 2. अब मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो मैं एक्सपोनेंट में 1 ऐड करूंगी तो आई विल गेट 2 स्क्वायर, दैट इज 4. ठीक है, दिस इज हाउ an exponentially growing sequence looks like. ठीक है, ये बेसिकली exponentially growing sequence है. तो इसमें एक तो चीज ये होगी कि आपके पास जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो सारी इंक्रीजिंग होगी. ठीक है, वो बड़ी होंगी. सीक्वेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे आपके पास लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक कोई बड़ा सा नंबर है, लेट्स से 1000 है, अगली टर्म 500 है, उसके बाद 250 है. यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है वो बेसिकली 1/2 रेशो से डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, ये ग्रो नहीं कर रहा. तो बट सैट के लिए हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो. ठीक है, इज इट क्लियर? अभी सिर्फ इतना समझ में आ गया कि एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सीक्वेंस लगता कैसे? Yeah. Yes, ma'am. Okay, perfect. Right. The question is, what would the nth term be? Nth term would be, okay, we need to talk about this. अभी हम बात करते हैं टर्म 1 की. ठीक है, टर्म 1 is basically 2. Term 2 is, Wait. yeah, Do we have to use these arithmetic or geometric terms? exactly. ये basically it is a geometric sequence, right? अभी when I'll talk about the nth term,
you will see कि जो expression आ रहा है वो geometric sequence वाला आ रहा है, ठीक है? ये arithmetic नहीं है, यहाँ पे हमारे पास difference नहीं है, ये D वाला नहीं है, ठीक है? यहाँ पे basically एक ratio से हमारा जो Yeah. sequence है वो बढ़ रहा है, and that ratio is 2. अभी हम उस बात पे आ रहे हैं, right? All right. Okay. So the next term would be, term 3 would be 2 into 2 square, that is 8. Term 4 would be 2 into 2 cube, ठीक है? This is the first term, this is the second, third, fourth, 16, and so on. If I talk about the nth term, ये 2 सब में आ रहा है. I'll write down this 2 as it is. जब मैं second term की बात कर रही थी, यहाँ पे मेरे पास 1 था. जब third term थी, यहाँ पे मेरे पास 2 था. Fourth term में I have this 3. तो nth term में मेरे पास 2 की पावर में क्या होगा? 4. Nth term, this is the nth term. Nth term is basically general है ना, जिस तरह 4 के लिए 3 था, तो nth के लिए n-1 होगा. nth term 4 के बाद नहीं आ रही, ठीक है? nth term एक in general term है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट द 38th term, तो उसके लिए आप 5, 6, 7, 8 नहीं करेंगे, ठीक है? उसके लिए यू नीड अ जनरल फॉर्मूला, एंड यहाँ पे आपने कुछ करना होगा, एंड देन यू विल सी कि अच्छा ओके 38 टर्म ये. Do you understand this nth term वाली question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब Zaheb was very right and I would definitely appreciate के बहुत अच्छा point out किया उन्होंने. जो हमारे पास geometric sequence होता है ना, उसकी भी जब हमने nth term निकालनी होती है, तो वो कुछ इस तरह की होती है, a into r to the n-1. यहाँ पे a is basically the first term, फर्स्ट टर्म होती है a, r रेशो होती है, ठीक है? एंड n इज बेसिकली द टर्म जो हमने फाइंड करी, जो मैं क्वेश्चन में पूछी, ठीक है? अब जब हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस की बात करते हैं ना, तो यूजुअली वो सीक्वेंसेस कम हुए होते हैं. वो लेट्स से वो इस तरह के होते हैं, मतलब वो ग्रो नहीं कर रहे होते हैं. अगर वो 32 से स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद 16 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है? तो यहाँ पे जो रेशो है वो 1/2 है. और रेशो आपने फाइंड कैसे की है? किसी भी टर्म को डिवाइड कर दे उसकी पिछली टर्म से, 16/32 करके वी विल हैव 1/2. तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इस केस में. लेकिन दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग की बात कर रहे हैं. तो यस, डेफिनेटली इट लुक्स लाइक कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से बहुत ज्यादा इट इज वेरी मच सिमिलर टू अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, बट यहाँ पे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो रेशो होगी वो एक फ्रैक्शन नहीं होगी, वो इस तरह की होगी. यहाँ पे हमारे पास रेशो 2 है. हाउ? व्हाट डिड आई जस्ट टेल यू? रेशो निकालने का तरीका क्या होता है? कोई भी टर्म, लेट्स से मैं 8 ले लेती हूँ, मैं 8 डिवाइडेड बाय पिछली टर्म कर दूं 4, मेरे पास 2 आ गया है. सिमिलरली मैं 32 डिवाइड बाय 16 भी कर सकती थी, मैं 4 डिवाइड बाय 2 भी कर सकती थी, ठीक है, टू फाइंड आउट द रेशो. अब मेरे पास रेशो 2 आ गई है, ठीक है? तो सिर्फ यहाँ पे मेरे पास r की जगह 2 लिखा हुआ है और a की जगह मेरे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 इज द फर्स्ट टर्म इन माय सीक्वेंस, राइट? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, so the question is, what if I ask you to find the 38th term of a sequence? I'll just share the sequence. Okay. Example, find
38th term and the sequence is 1, 3, 9, 27, 81. अच्छा, अब जस्ट बिकॉज के SATA does not imply कि इसमें सिर्फ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ ही आएगी, so far we have discussed this, ठीक है, सीक्वेंसेस में, but still you need to see के if it's growing exponentially or not, ठीक है, and कैसे चेक करेंगे हम वो चीज हम ऐसे चेक करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है मेरे पास, इट इज 3 to the 0, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है, लास्ट एक्सप्रेशन में लास्ट सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 थी, नेक्स्ट टर्म 4 थी, उसके बाद 8 था, तो लास्ट वाले में तो 2 to the 1 था, बट यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो दिस कैन चेंज, ठीक है, ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस चीज वेरी करेगी, आपने कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने माइंड में याद नहीं कर लेना कि अच्छा हाँ ऐसे होता है, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ हमें चीज चेक करनी कि क्या ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फर्स्ट टर्म 3 to the 0 से आ रही है, सेकेंड टर्म 3 to the 1 से आ रही है, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर से आ रही है, एक्सक्यूज मी, फोर्थ टर्म 3 क्यूब से आ रही है। इज इट क्लियर? मतलब इस तरह से हमें एक नंबर मिल गया है जिसकी मैं पावर्स में 1 ऐड कर रही हूँ इन ऑर्डर टू गेट माय नेक्स्ट टर्म्स। ये चीज समझ में आ गई है? Yes, ma'am. अच्छा, इससे सिर्फ ये डिटरमाइन हुआ है कि दिस सीक्वेंस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, नथिंग एल्स। अभी हमें हमारा आंसर नहीं मिला। अब अगर ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है तो हमने डिस्कस कर लिया है कि nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। A1 is basically, और A लिख दो उसको, A is basically the first term into R n minus 1. This is our general formula which is applicable for every sequence which is growing exponentially. चलो ये हमें समझ में आ गया है। Now we need to find R and A, ठीक है? A is the first term of our sequence. In our example, it is 1. Previous example में वो 2 थी, तो एक different expression बन रहा था। यहाँ पे हमारे पास 1 है। हमने कुछ याद नहीं करना, मैथ्स में आप कुछ फिक्स्ड याद नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 वाला है, तो यहाँ पे हम 3 into 3 to the n-1 कर देंगे, not at all, ठीक है? You need to be observant enough to know कि यार पहली टर्म 1 है, तो you will have 1 instead of A, ठीक है? Into R क्या है? Who will tell me कि R क्या है? Ratio. 3. Excellent. It is ratio and it is 3. Very well done. 3. Okay. So this is the general formula. यहाँ पे हमने find क्या करना है? 38th term. तो अगर मुझे 38th term चाहिए, it would be 1 into 3 to the 38 minus 1. That is 1 into 3 to the 37. अब obviously ये question एक MCQ था जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे, उसमें से एक ऑप्शन ये थी, ठीक है? अब दे वोंट एक्सपेक्ट यू कि आप इसको कंप्यूट करने बैठ जाए इन दी नो कैलकुलेटर पार्ट, ठीक है? तो दिस इज गिवन के अगर नो कैलकुलेटर पार्ट है, आपका जो आंसर है वो इसी फॉर्म में होगा। तो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Okay, we are done with this topic as well. Let's talk about a topic which you guys must be familiar with already. That is systems of equations, ठीक है? अब ये basically होता क्या है? What are systems of equations? Basically, you will be given with more than one equations. ठीक है? It could be 2, 3. SAT में 2 होती है usually. Or you will basically be solving those equations. Now again, when you have the term solving or solve, you need to find the values of x and y. Let's say, for example, it's just a random example. We have one equation, we have two equations. So when we will solve this, we will basically solve two variables. So we will end up getting a point. Okay? This is what solving means in case of systems of equations. So we know basically कि हमने करना क्या होगा, ठीक है? हमने solve करना होगा, कैसे करना होगा, we'll talk about that. अभी सिर्फ ये पता होना चाहिए कि systems of equations होती क्या है। अच्छा, okay. So we have
two methods of solving it. एक मेथड है substitution and the other method is linear combination. ठीक है? So we can either solve it using substitution method or using the linear combination method, right? Let's talk about our first example and let's just do it through the type 1, that is substitution. अच्छा, कोई hard and fast rule नहीं होता, ठीक है? Equations की type देख के you need to determine के substitution method use होगा या linear combination method use होगा, okay? तो it is 2c plus d equals 11, c plus 2d equals 13, okay? अब इसको solve करना है, ठीक है? काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है सब्स्टिट्यूशन. ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है? इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई कर रही है? ये जो साइन होता है ये इंप्लाई का होता है कि d इज बेसिकली इक्वल टू 11 माइनस 2c, और ये जो मेरे पास नई इक्वेशन आई है ना, इसको मैं स्टार कह देती हूँ. अब मेरे पास d आ गया है. अब अगर मैं यूजिंग स्टार इन 2, इसका मतलब है कि स्टार इक्वेशन में जब 2 में यूज करूंगी, बेसिकली मैं d में, जब ये d है ना, मैं d में जब ये वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? c प्लस 2 और d की जगह क्या आ जाएगा? 11 माइनस 2c इक्वल्स 13, ठीक है? आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस. आई विल गेट c plus 22 minus 4c equals 13 minus 3c equals 13 minus 22 minus 3c equals minus 9. c is 3. Okay, c3 आ गया. And again using c equals 3 in star, d is 11 minus 2, c की जगह 3 आ जाएगा. So d is 11 minus 6, d is 5. So we have basically solved a system of equations where we had two equations. और जब system होता है ना, तो we end up getting more than one values, ठीक है? 2 equations थी तो 2 unknowns होंगे और उनकी 2 values आ जाएंगी. We have solved this using the substitution method. ये काफी self explanatory था कि पहली equation से हमने d को subject बनाया है और d को सब्जेक्ट बना के हमने उसको दूसरी इक्वेशन में इंसर्ट कर दिया, एंड देन वी हैव सिंप्लीफाइड. c आ गया और इस c को हमने अगेन इस इक्वेशन में यूज कर लिया टू फाइंड d. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, परफेक्ट. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप 2 नाउ. नाउ ऑब्वियसली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा आपके पास कि आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है या किससे करना है. This would be your choice, ठीक है? वो आपने क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है अपनी चॉइस को. I'll tell you how. अब लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन मींस, लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है x minus 7 equals 3y और दूसरी इक्वेशन है x plus 5 equals 6y. This is the first equation and this is the second equation, ठीक है? अब अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऐड करती हूँ. लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? आइदर कि मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में और राइट हैंड साइड्स को आपस में, या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन पूरी को. ऑब्वियसली मैं किसी भी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मैथमेटिकली इट इज करेक्ट अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है? पर्पस क्या होगा मल्टीप्लाई करने का, आई लेट यू नो. लेकिन अभी हम क्योंकि इस एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लीनियर कॉम्बिनेशन
मेथड से सॉल्व करना है. सो आई विल बेसिकली सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. ठीक है, या आप आइदर वे भी कर सकते हैं. लेट्स राइट डाउन 1. अच्छा, अब ये 1 की लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है, ये किस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अच्छा, फिर से मीटिंग 10 मिनट्स बाद एंड हो जाएगी. ओके, अच्छा, x minus 7 is the left hand side और we need to subtract. तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, -6y. ठीक है, x minus 7 minus x minus 5 equals -3y. अब ये दोनों x कैंसिल हो गए. ये -12 है और ये -3y है और y बेसिकली 4 आ गया. ठीक है, y 4 आ गया. अब हमें x चाहिए. हम इस y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. लेट्स से कि मैं इक्वेशन 2 कंसिडर करती हूँ और मैं y पुट करती हूँ, तो x क्या होगा? 24 minus 5 x 19 होगा. अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली आई हैव यूज्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब बेसिकली होता है कि मैं इसको करने का एक और तरीका ये भी हो सकता था कि मैं इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूं और मैं इसको ऐड कर दूं इस फर्स्ट इक्वेशन में. ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपको आपके पास लेट्स से दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आप दोनों को ऐड कर रहे हैं और आप दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशंस को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई. और वो सिंप्लीफाई क्या था? मुझे बेसिकली x को x से कैंसिल करना था. तो इस केस में मैं -1 मल्टीप्लाई करती और मैं यहाँ लिख देती add 1 and 2 and 1. तो बेसिकली मैंने 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रखा? मैंने 1 के साथ सिंपल 1 ही मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन 2 के साथ मैंने दोनों साइड्स पे -1 मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स जब आप फ्यूचर में अगर पढ़ते हैं लेट्स से लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है. आई नो कि यू गाइस मस्ट बी फेमिलियर विद दिस मेथड ऑलरेडी. आपको पता होगा कि हम इस तरह से भी करते होते हैं कि हम कैंसिल कर दे, ये कर दे, बट इस मेथड को आप लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशंस के आप दो कॉम्बिनेशंस बना के उनको ऐड करते हैं सच दैट कि कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए. और ऑब्वियसली जब एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा हमारे पास सिर्फ एक ही बचेगा और एक इक्वेशन में एक वेरिएबल, उसको तो हमें सॉल्व करना आता है. राइट? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Is it clear, Ishan? Yes, ma'am. Also, it's not Mhm. necessary that you multiplied -1 with equation 2, right? You could have also done that with equation 1. Exactly. Very well said. Very good. बिल्कुल सही आपने कहा. ठीक है. अच्छा. Okay. Now I have a question. 3x plus 6y equals 14 and 3x plus 6y equals 9. इसका क्या solution होगा? How would you solve this? अच्छा, लेट्स से कि मैं यूज करती हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड के लिए मुझे यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाने अपनी चॉइस के बाय आइदर मल्टीप्लाइंग 1 -1 2 100,000 जो मर्जी नंबर है उनको मैंने ऐड करना है. ठीक है, उनको मैंने जब ऐड करना है ना तो कुछ इस तरह से होना है कि मेरे पास कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो जाना है. लेट्स से कि मैं
1 यहाँ करती हूँ, यहाँ मैं -1 करती हूँ, मैं अब इनको ऐड करती हूँ, डेफिनेटली वो यहाँ पे और यहाँ पे भी होगा बिकॉज इट्स मैथ्स और इक्वेशंस को बैलेंस रखना है। लेफ्ट हैंड साइड्स को मैं ऐड करती हूँ और सिंस यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा -3x -6y और ये है 14 -9, ठीक है। तो ये तो मेरे पास 3x से कट गया और 6y से कट गया एंड आई एम लेफ्ट विद 0 इक्वल्स 14 -9, तो 0 इक्वल्स ये मेरे पास आ गया 5। तो ये चीज होल्ड नहीं करती, ठीक है। ये इक्वालिटी जो है, एक तो बात ये कि इक्वालिटी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही और जो मेन बात है वो ये है कि x और y मेरे पास आ नहीं सकते इस तरह की सेट ऑफ इक्वेशन से। एक और तरीका ये भी था मैथमेटिकली देखने का इसको कि ये दोनों इक्वेशंस हो ही नहीं सकती। यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और राइट हैंड साइड डिफरेंट है, यहाँ पे 14 है यहाँ पे 9 है, तो ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। और इस तरह की इक्वेशंस के लिए आपने चूज करना होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास कोई भी एक्स और वाई होल्ड नहीं करते जो कि दोनों को कर सकते, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, perfect. अब I have a question for you guys. Let's say हमारे पास है 5x plus 3y equals 14, 15x plus dy equals 21. Question is, what value of d would give the system का मतलब है ये जो दो इक्वेशंस लिखी हुई है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नो सॉल्यूशन। अच्छा, ये बेसिकली क्वेश्चन है एंड यू गाइस हैव टू थिंक एंड लेट मी नो कि डी की कौन सी वैल्यू के लिए इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। एंड आई विल राइट द ऑप्शन एज वेल। a is -9, b is -3, c is 1, d is 3 and e is 9. Okay, now think and let me know. E. And Isha, what about you? C. Okay, so Zahib is saying that it is E and Ishal is saying that it is C. Now, Zahib is right, very well done, and Ishal, very good that you participated. Now I'll tell you. Let's think about one. 15x plus y equals 21. अब 15x plus y और 5x plus 3y equals 14, ये दोनों दो डिफरेंट इक्वेशंस है, ठीक है। इधर जो लेफ्ट हैंड साइड्स है वो दोनों के डिफरेंट है और इसलिए राइट हैंड साइड डिफरेंट है, तो ये चीज कुछ गलत नहीं लग रही, ठीक है। यहाँ पे आप फाइंड कर सकती हो, लेकिन अगर हम यूज करते हैं जहेब वाला आंसर, हम कहते हैं 15x है और 9y है, ठीक है। और इस केस में मैं डेफिनेटली मैथ्स में दोनों साइड्स पे सेम ऑपरेशन कर सकती हूँ, मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ, तो आई विल हैव 5x plus 3y equals 7. अब ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन रही है और ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी। अब यहाँ पे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स हो गई है सेम और राइट हैंड साइड्स अभी भी डिफरेंट है, तो ये चीज मैथमेटिकली इनकरेक्ट है कि दो इक्वेशंस हैं, उनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है लेकिन राइट हैंड साइड्स फर्क है। तो इस तरह की इक्वेशन के लिए हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा और ये बेसिकली 9 यूज करते हुए आ रहा है, ठीक है, ई यूज करते हुए आ रहा है। इज इट क्लियर ईशल? Yes, ma'am. I understand. I mixed up the two equations, but ओके, I know that the answer is E. परफेक्ट, एक्सीलेंट। अच्छा, अभी मीटिंग एंड होने लगी है, आई विल जस्ट शेयर दिस अदर लिंक, ठीक है, इन लेस देन अ मिनट, तो वो फौरन ज्वाइन कर लेना, ओके। All right.